ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और बालकांड चैप्टर 72, दशरथ चैरिटी बिफोर द वेडिंग। विवाह श्री श्री सीताराम लक्ष्मण, सीताराम जी का उर्मिला और लक्ष्मण जी का विवाह के पूर्व और साथ ही साथ में भरत शत्रुघ्न का विवाह भी तय हो गया उसी दिन करने के लिए। तो विवाह के पूर्व दशरथ महाराज जो कुछ संस्कार करते हैं, चैरिटी दान, उसका वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। सो उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फाल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः। O Brahmana, the wise glorify the latter of the 2 days under the Falguni star as appropriate for marriage, since Bhaga is the lord of progeny at that time. So Uttare Divase, uh, the wise glorify the latter of the 2 days, मीन्स जिस दिन इस चर्चा हो रही थी उसके 2 दिन के बाद जो फाल्गुनी नक्षत्र है उसको विवाह के लिए बहुत ही योग्य मानते हैं। जनक महाराज pointed out that the day under the Uttar Falguni star is glorified by the wise. So इसका ज्योतिष शास्त्र से वर्णन किया जा रहा है। It is seen in the Jyotish Shastra that carrying out multiple festivities in the same house at the same time is forbidden. In a house, one should only carry out one auspicious activity at a time. He who performs more than one auspicious activity at a time perishes. Then why did Janak suggest that 4 weddings be conducted at the same time? So in answer to that objection, it can be pointed out that according to another learned opinion, brothers of a single house are prescribed to conduct the festivity at the same time. The Daiva Yajna, Daivagya Vilas states, Vinno भिन्नोदारोद्यतवताम् उद्वाहे कल्पयेत पृथक् वेदीम् एकग्रहे जगुर आर्य मंडपम एकम प्रसारणोत्कम. At the marriage ceremony of those who have taken birth from different mothers in the same house, one should arrange for different platforms for each ceremony in the same hall. Authorities state that this has been stated by Parasar. Marriage ceremony of those who have taken birth from different mothers in the same house. One should arrange for different platforms for each ceremony in the same hall. One might object further, even then, how could Lakshmana and Shatrugna, who took birth from the same mother Sumitra, marry at the same time? This is forbidden. एकमात्र प्रसूतानाम् एकस्मिन् एव वत्सरे विवाहम् औञ्जी बन्धं च चूडाकर्म न कारयेत्. For those who have taken birth from the same mother, one should क्या है इसको कैसे हटाएं? For those who have taken birth from the same mother, one should not perform marriage investitures
of the sacred thread or the saving ceremony in the same year. ये बड़ा विस्तार से चर्चा किया जा रहा है कि कैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का एक साथ विवाह करना उचित है. So in response, it must be admitted that while the above is true, as a general principle, such a ceremony can be conducted on the same day, as an exception, as in evident in Daivagya Vilas. So in the case of two brothers or two sisters, or a brother and sister, in case of brothers or sisters, different mothers, the same activities should be conducted. A marriage ceremony for two boys born from the same mother conducted on the same day at the same lagna, but at a different time during that lagna, on that day will produce auspicious scenes. तो अनेकों शास्त्रों के ऊपर विचार करने के पश्चात ये निर्णय लिया गया कि फाइनली भरत शत्रुघ्न जो कि एक ही माता से उत्पन्न पुत्र हैं, उनका एक ही समय पे एक ही स्थान पे विवाह करना उचित है, बट एट ए डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग दैट लग्न ऑन द डे विल प्रोड्यूस ऑस्पिशियसनेस. अलग अलग समय पे अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये शास्त्र विधि के अनुसार ये उचित है. तो फाइनली ये फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र चूज किया गया जो बेस्ट होता है विवाह संस्कार करने के लिए. एवं उक्त्वा वचा सौम्यं प्रत्युत्थाय कृतांजलि उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यम अब्रवीत. तो जनक महाराज इस प्रकार से बोलने के पश्चात मधुर शब्दों में एड्रेस किए और फाइनल डिसीजन दिए कि चारों उनके जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं, उनका विवाह उनकी दो पुत्रियों और उनके छोटे भाई कुशध्वज की दो पुत्रियों के साथ जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कर दिया जाए. ये बोलने के पश्चात वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और इस प्रकार से उन महान ऋषियों को एड्रेस करते हैं. परो धर्मा कृतो मह्यम शिष्योऽस्मि भवतः सदा. You have caused me to perform a great activity of dharma. I will always be a disciple of both of you. तो जनक महाराज बहुत ही आभार महसूस करते हुए विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों को बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से मुझे एक बहुत ही महान धर्म को करने का मौका मिला. क्या महान धर्म? चार पुत्रियों का कन्यादान, चार चार पुत्रियों का कन्यादान एक साथ और और पूरा शास्त्र विधि का पालन करते हुए मिल रहा है. इसलिए हाँ, मैं बहुत धन्य हूँ और आई विल ऑलवेज बी ए डिसाइपल ऑफ बोथ ऑफ यू. आप दोनों का मैं शिष्य रहूंगा हमेशा के लिए. So the great activity of dharma that King Janaka is referring to is giving his daughters in charity. कन्या का दान करना अगर कोई वैदिक शास्त्र के अनुसार करता है तो एक बहुत महान ये दान कहलाता है, जो बहुत पुण्य प्रदान करता है. हम लोग इसको ऑलरेडी श्रवण कर चुके हैं कि कैसे आ, राजा रोमपाद महाराज के राज्य में जब अकाल हुआ था, उनके पूर्व कुछ पाप करने के कारण, कुछ अपराध के कारण, और उसको हरे कृष्णा, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा चला गया. ओके. सो रोमपाद महाराज के राज्य में जब अकाल हुआ था तो उस वक्त ऋष्यशृंगा जो कि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थी, उनको जब वैदिक विधि के अनुसार उन्होंने अपनी कन्या का दान किया था तो उससे जो पुण्य प्राप्त हुआ था तो उनके पिछले सारे पाप और अपराध जो है नष्ट हो गए और इमीडिएटली उनके राज्य में बारिश हो गई थी. तो कन्या के दान करने से ये, अगर योग्य वर को कोई कन्या दान करता है वैदिक विधि के अनुसार, तब उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है. लव मैरिज करने से नहीं प्राप्त होगा. लव मैरिज करेगा तो पुण्य नहीं मिलेगा. ये वैदिक विधि के अनुसार और योग्य वर को अगर कोई प्रॉपर तरीके से
उचित वर को ढूंढता है और उचित तरीके से वैदिक विधि के अनुसार करता है, तो फिर उसको एक महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इमान्यासन मुख्यानि आसातां मुनिपुङ्गव यथा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वेनास्ति संदेहो यथारं कर्तुमर्हता। O excellent sages, please sit on these simhasanas, just as the city of Mithila is Dasarath's, the city of Ayodhya is mine. Therefore, there is no doubt that you can lord over and do whatever you need here. So जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि जो है अपने राज्य का उत्तम जो सिंहासन है उन दोनों मुनियों ऋषियों को प्रदान किए, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, और डिक्लेयर किए कि जिस प्रकार से मिथिला का जो नगरी है ये दशरथ का है, हाँ, और अयोध्या का जो नगरी है मेरा हो गया, मेरा ही है, मतलब अपना तो अभी संबंध में जुड़ गए हैं। तो इसलिए अब ये भेद नहीं रह गया है कि एक मिथिला का राज्य है और एक अयोध्या का राज्य है, दोनों एक ही राज्य है। सो इसलिए आप यहाँ से आप भी लॉर्ड कर सकते हैं, यानी रूल कर सकते हैं, और जो भी आप चाहें, आपको जरूरत लगे, आप कर सकते हैं। King Janaka wanted to point out that to the sages that they were free to sit on the simhasanas reserved for his brother, himself, and Dasrath. Asat, Asatam indicates his humility in conveying this. He indicates that these three kingdoms, that of Sankasha, Mithila, and Ayodhya, belong to the sages. तो उनका खुद का नगरी हुआ, राज्य हुआ मिथिला, दशरथ महाराज का राज्य अयोध्या, एंड सांकाश्या उनके छोटे भाई, जनक महाराज के छोटे भाई कुशल ध्वजा का राज्य हुआ। तो ये तीनों राज्य में ये दो महान ऋषियों का पूर्ण अधिकार, किनका, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि का, और उनके लिए जो उत्तम सिंहासन है, उसको प्रदान कर रहे हैं। बट हाउ कुड किंग जनक गिव द सिंहासन ऑफ दशरथ इन चैरिटी? दशरथ महाराज का सिंहासन अयोध्या का भी वो चैरिटी में देने बयान करती है। The second line answers this question. Just as Dasarath can use the city of Mithila for his desired purposes, Janak could use the city of Ayodhya for his desired purpose. Arhata also indicates that Janaka honored the sages very much. He wanted to tell the two sages, all of us are subordinate to both of you. Please instruct us on what is beneficial to three of us and have us perform our duties as appropriate. तो जनक महाराज इतने कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, आभार महसूस कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि दोनों के लिए, कि ये तीनों राज्य का सिंहासन उनको प्रदान करती है कि आप इसमें बैठ करके आप यहाँ से रूल करिए। या दूसरे अर्थों में, अब ये तो बात तो है कि ये दोनों ब्राह्मण हैं, विश्वामित्र मुनि भी ब्राह्मण है, वशिष्ठ मुनि भी ब्राह्मण है, तो ये दोनों तो रूल करेंगे नहीं। तो कहने का भाव क्या है कि आपके मार्गदर्शन, आप जैसा बोलेंगे उस मार्गदर्शन में हम यहाँ पे राज्य करने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये जो तीनों राज्य हैं ये आपको बिलोंग करते हैं, ये आपके हैं, और हम आपके सेवक के रूप में आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। ये भाव से जनक महाराज बड़े विनम्रता के साथ ये ऑफर कर रहे हैं। तथा ब्रुवति वैदेहि जनके रघुनंदना राजा दशरथो हर्षृष्टा प्रत्युवाच महीपतिम्. When Janaka, the ruler of Videha, spoke thus, the beloved descendant of Raghu king Dasarath became delighted and replied as follows to the king. जब जनक महाराज इस प्रकार से अपने भाव को प्रकट किए विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के प्रति, तब दशरथ महाराज भी वहां पे खड़े थे और वो भी बड़े प्रसन्न हो गए, और इस प्रकार से जनक महाराज को बोलते हैं। सो दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न क्यों हो गए? क्योंकि जनक महाराज वही चीज बोले जो दशरथ महाराज भी चाहते थे, उन दो मुनियों को बोलना चाहते थे, वही जनक महाराज भी बोल दिए, यानी मैच हो गया दोनों का डिसीजन। तो अब दशरथ महाराज और जनक महाराज को इस प्रकार से बोल रहे, युवाम असंख्येय गुणम भ्रातरो मिथिलेश्वरो ऋष्यो राजसंघाश्च भवद्भ्याम अभिपूजिता
Both of you brothers, the kings of Mithila, have innumerable good qualities. Sages and host of kings have been worshipped by both of you. दशरथ महाराज इस प्रकार से जनक महाराज को और उनके छोटे भाई कुशध्वजा को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि आप दोनों राजा मिथिला के, आपके अंदर अनेकों दिव्य गुण हैं, बहुत अच्छे गुण हैं, असंख्य अच्छे गुण हैं। और जितने भी महान ऋषि मुनि आए हैं और गेस्ट आए हैं, सब आपके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा को प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे क्या होता है हम लोग कल चर्चा करेंगे। समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।